बाहर धक्का मत दो भाई समझ रुक अभी थोड़ा पीछे थैंक यू सर थैंक यू चले बाहर जाने And the regular use of tobacco via any means, that is smoking, chewing, snuffing, is responsible for 65 to 80% of cancer incidences in men and women respectively. So WHO also says that globally and it is the first nutraceutical natural product that will be available in coming days at pan, tobacco, gutka, cigarette shops also. So as I discussed the objective, for 35% of the Indian population who are tobacco users, either they are addicted or they are less inclined to refrain from using it, Swarn Sati is available for them as a protective shield. And it is the first ever such option available in the country and globe to have a measure to provide beneficial support in tobacco and gutka users who are at risk of cancer and other chronic diseases. As we all know that on the packet of cigarette also it's written, smoking kills, tobacco causes cancer. So it's a blend of the three natural ingredients. The turmeric, as I said, why it is Swarn? Because it is having turmeric, haldi. So the haldi extract, the tomatoes and the others similar like carrots, watermelon and papaya extract. The active molecule which is present in tomatoes and which we have taken is a natural lycopene, which is a very potent antioxidant. And we have taken piperine from the black pepper extract, which is known as kali mirch. So these all are the natural active ingredients which are present in Swarn Sati. Now the question arises, why there is a need to formulate haldi? We all can eat haldi in our day-to-day life as a spice, so we can dissolve it in milk and we can just drink it. That's a common phenomenon which we are practicing since long 100 years. So the reason behind for formulating haldi is, first let's know what are the disadvantages of the haldi which we eat. I mean disadvantages in the terms we expect a lot of beneficial properties from haldi which we eat, but the fact is, the practical thing is that it is not able to deliver the beneficial activities. The reason behind is, the first thing is the curcumin content. Curcumin is the active molecule of haldi which is responsible for the beneficial actions to save you from the various ill effects of the cigarette smoking or tobacco or gutka. So curcumin is very important. It has to be present in the right quantity in the turmeric to have the desired beneficial action. So if we take one single rhizome of turmeric, it only contains like 2 to 5% of the active molecule. And whereas your body requires 1 gram of the curcumin to have a shield from the chronic diseases including cancer. So it is very difficult to consume such amounts. And the very important point to note here is, for the turmeric to benefit, especially with respect to cancer, it's a big term which I'm using. With respect to cancer, at least 2.5 to 5 tablespoons are necessary to be consumed daily. That will be equivalent to somewhere around 75 grams. अच्छा हिंदी में भी बताऊं. So अगर हम नॉर्मल टर्मरिक लेते हैं और हम उसका बेनिफिशियल एक्शन चाहते हैं जो हमें किसी डिजीज या स्पेशली कैंसर से बचाए, उसके लिए हमें कम से कम 2.5 से 5 बड़े चम्मच हल्दी खाना पड़ेगा और वो इक्विवेलेंट होगा 75 ग्राम के. That is a very big quantity which no one can eat as a spice or by dissolving in any other liquid. So this is number one thing. Second thing is, let's suppose we are taking the raw haldi and we are taking the right doses, we are eating the 70 to 75 grams of haldi. Even then the beneficial activity is not assured. Why? Because
the turmeric doesn't get absorbed in the blood properly. The reason behind it gets break down by the liver and the intestine, and it doesn't reaches the blood to exert its beneficial action. So 2 points has to be noted. The haldi should be in the right, the active molecule of haldi, that is curcumin, it should be in the right quantity. And second, it should be available in the blood also to exert the biological action or the beneficial action, we can say, which will protect from the ill consequences of tobacco, gutka, cigarette, and like that. So the two disadvantages I mentioned. Now I will explain the advantage of the innovative curcumin in Swarn Sati. So we have used a curcumin which is a bioefficient curcumin with complete natural turmeric matrix. Bioefficient refers to a curcumin who is having the desired biological action, who delivers actually. So this curcumin has high curcumin content. It is 10 times more bioavailable as compared to standard curcumin. So suppose if you are taking some 40 mg of this curcumin, you will get 400 mg equivalent benefits to as that of 400 mg. So it also provides assured functional benefits. So one packet of Swarn Sati, which is of 4 grams, provides adequate curcumin, adequate haldi, which will help in shielding cancer and other chronic diseases which results from the consumption of tobacco, gutka, cigarette smoking, and rest others. So the ingredients are curcumin. Basically what it does, it safeguards against the chemical toxins which are liberated by tobacco, gutka, and betel nut chewing, as well as cigarette smoke. It also suppresses the genes implicated in causing cancer. It has a very good antioxidant property. The natural lycopene which we are using is also a very powerful antioxidant, and it complements the curcumin to help protect from the cancer, from the occurrence of cancer. And piperine here, again, it is added to enhance the bioavailability, to make the adequate amount of curcumin in blood so as to have the desired action. So in nutshell, the beneficial actions, it is available as a mouth pour formulation. It is lying on the table outside. You all can have a look onto that. Even if you want, you can taste it also. It's a mouth pour formulation which is effective to counter oral cancers of mouth and throat, particularly due to tobacco, gutka, betel nut chewing. It also helps in submucous fibrosis, which is a precancerous stage. It also protects smokers against the cancer of lungs. Smokers are at higher risk, and the percentage of smokers are very high in our country. So for them also it's very beneficial. And for many already existing cancers in the body of any type, it will be helpful. Besides this, it is all about the things which I discussed was all about the habituates of the ill habits. Now what about those who are non-tobacco users or who are the non-habituates? For them also, this is very, very beneficial, as it supports the cardiovascular health, digestive, gastrointestinal, musculoskeletal, and takes care of the overall well-being of the human body. It will also help to fight and safeguard against the harmful chemicals, toxins, pollutants, adulterants. Nothing in this world is pure now. The food which we eat, the environment in which we go, it is all full of pollutants and chemicals. So it will safeguard from the ill effects of those chemicals also. So all natural, harmless, non-habit forming, single serve sachet for convenient once daily intake. It has a great and pleasant flavor, and we don't have any such competitor in India as well as in globe. It is apparently safe for regular consumption unless there is a case of allergy to the ingredients added to it. Directions, you can just simply cut open the sachet and pour the contents in the mouth.
These are the availability and storage. It will be available all across the India on online platforms, Amazon, Flipkart, and on the, as I said, supermarkets, retailers, chemist shops, cigarette, tobacco shops, everywhere it will be available. That's all. Thank you very much. Thank you, Nilakshi. Welcome, Akshay sir. Today morning, I was sitting with Girish sir, and Mr. Girish Juneja is the chairman and CEO of Big Brother Nutra. He's the co-founder and director of Bestochem Group. And he told me, Rohit, don't call me on the stage and don't introduce me. I'm taking the liberty of actually calling you up. And I'm not going to introduce you, sir. But a few days back, I was watching a success documentary by Akshay sir. And Akshay sir, I'm going to take the liberty of quoting a few words that you said in that success documentary. Those words were quoted in a general context of success. But when I heard those words, I thought they quite nicely describe Mr. Girish Juneja. And those words are like this. जहां लोग दौड़ रहे हैं, वहां मत दौड़ें. जहां लोग दौड़ रहे हैं, वहां मत दौड़ें. अपना अलग से रास्ता बना लीजिए. अगर कोई नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं. आप अकेले हो जाइए. कुछ ना कुछ सही होगा. जिस दिन किसी इंसान का काम उसका पैशन बन जाता है, वहां से उसको कोई हिला नहीं सकता. And I think these lines, as said by Akshay sir once, quite nicely describe the personality and achievements of Girish sir. He is the man who's not running a regular race. He's not making products just for profit. He's making products for a cause. He's making products for benefit of mankind, right? And I would like all of you to kindly give a very big round of applause and welcome the man because of whom we are all part of this mission. Please welcome Mr. Girish Juneja. Thank you very much. Good evening to all of you. I welcome you on the launch event of novel product Swarn Sathi. Big thanks to Akshay Kumar for joining us for today's event and for the association of Swarn Sathi, product Swarn Sathi. Akshay Kumar is a golden man, gold man, I would like to say gold man. He's a superstar, he's a gentleman. मैं इनसे मिला, कितनी बार मिला, करीबन 4 से 5 बार मिला. मैंने इनके बारे में बहुत सुना था, पर मिलने के बाद पता लगा कि अक्षय कुमार से बेहतरीन सुपरस्टार ही नहीं, इंसान भी नहीं. आई एम स्पीकिंग फॉर माई कोर ऑफ हार्ट. और अभी मैं इनसे ही बात कर रहा था कि अक्षय सर, मैं आपके लिए बोलूँगा यू आर ए गोल्ड मैन. स्वर्ण साथी का मतलब है गोल्डन कंपेनियन, एंड यू आर ए गोल्ड मैन. I would like to call you as a gold man. ये प्रोडक्ट हम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्वर्ण साथी, इसका मतलब यही नहीं कि हमको इसको सिर्फ सेल करना है या अर्निंग करनी है. I would like to say हमें इससे लोगों का भला भी करना है और हमें इसे गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचाना है. I would like कि इस प्रोडक्ट को हम एक से एक छोटे इंटीरियर में भी लेके जाएं, एक बड़े शहर में भी लेके जाएं, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिला हूं जो लोग गुटखे की आदत है, सिगरेट पीने वाले तो बहुत ही ज़्यादा लोग हैं. पर अब मैं देख रहा हूं, क्योंकि मेरा बहुत टूर होता है, मैं बाहर जाता हूं, हिंदुस्तान में कई गांव भी घूमता हूं, शहर भी घूमता हूं, जहाँ एक तो हर इंसान गुटखा. एक पंडित जी से मिला, बहुत बड़े पंडित जी टीवी पे भी आते हैं, उनसे मिला तो वो भी गुटखा खा रहे थे. तो इस तरीके से आप एक रिक्शा वाले से मिलो, वो भी गुटखा खाता है. ये स्वर्ण साथी की शुरुआत कहाँ से हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ. कुछ साल पहले, 3 साल के आसपास की बात है. आई वाज ट्रैवलिंग विद माय टीम मेंबर्स, मेरी जो फार्मा टीम के साथ मैं, आई वाज गोइंग फ्रॉम उज्जैन, मध्य प्रदेश से आई वाज ट्रैवलिंग टू जयपुर. We were sitting in a chair car, AC chair car. हमारे से 2 सीट आगे एक आदमी का मुंह कटा हुआ था. हम अपनी टीम के साथ बात कर रहे थे, एक आदमी का मुंह कटा हुआ था और पट्टी बंधी हुई थी उसको. तो हमने पूछा, उसके पेरेंट्स साथ थे उसके, एंड ही वाज क्राइंग. मैंने पूछा क्या हुआ. कहता साहब इसको कैंसर डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है और हम इसको जयपुर ले जा रहे हैं इलाज के लिए. तो क्यों, कैंसर क्यों हो गया मुंह में. तो बोला कि ये गुटखा खाता है, गुटखे की आदत थी. तो उस दिन हमने अपनी टीम मेंबर से कहा, जिसमें कुछ लोग यहाँ भी मौजूद हैं,
मैंने उनसे कहा यार एक काम करो भैया, ये गुटखे की कोई हम मेडिसिन बनाते हैं, न्यूट्रा प्रोडक्ट लाते हैं जिससे कि लोगों का भला हो। तो उसके बाद से शुरुआत हुई और हमको 3 साल लगे, हमने इसके क्लिनिकल ट्रायल लिए। वी टुक मैनी क्लिनिकल ट्रायल्स, उसको बनाया। उसके बाद हमने अपनी टीम मेंबर्स को बताया कि यू गो एंड मीट रिक्शा वाला, यू गो एंड मीट पान की दुकान, यू गो एंड मीट एवरीवन। छोटे से बड़े आदमी से मिलिए, उससे पूछिए कि वुड यू लाइक टू स्पेंड 15 रुपीज फॉर 1 पाउच, बिकॉज इट इज अ प्रिवेंटिव ऑफ कैंसर एंड माउथ अल्सर एंड अदर इल डिजीजेस। तो हर आदमी का हाँ ही था कि हम तो 100 रुपये का गुटखा खा जाते हैं, सिगरेट पी जाते हैं, तो 15 रुपये का यूज़ क्यों नहीं करेंगे। उसके बाद हमने इसकी शुरुआत करी और हमको बहुत लोगों ने हेल्प करी, इसमें प्रोडक्शन में हेल्प करी। इसका टेस्ट इतना बढ़िया बनाया हमारे मिस्टर गणेश कामत हैं, ही हैज़ डेवलप्ड टेस्ट, ही इज़ एक्सपर्ट। तो हमारे मिस्टर कामत ने हमारी हेल्प करी। हमारे कुछ केरला के लोग हैं, मिस्टर जॉन, ही हैव डन अ लॉट। They are the manufacturer of many. They are present in 80 countries. They are manufacturing many Nutra's product. I would like to pay thanks to all of them. तो इसकी शुरुआत यहाँ से हुई और अब हमारी चाहत यह है कि हम अक्षय जी के साथ आगे बढ़ें, इस प्रोडक्ट को आगे लाएं, क्योंकि इन्होंने इस प्रोडक्ट को हमारे एसोसिएट हुए। इसकी हम सक्सेस चाहते हैं आगे आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा। एंड इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने में, क्योंकि ये एंटी कैंसर से लोग, आप देखिए कि कितने हजार लोग रोज मरते हैं, आपको पता भी नहीं। कितने हजार लोगों को तो पता लग जाता है कि कैंसर से मर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड होता है, और कितने हजार लोगों का ये भी नहीं पता होता, जो गांव के हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उनको बीमारी क्या हुई। तो ये एक खूबसूरत प्रोडक्ट है, इसका नाम स्वर्ण साथी है। स्वस्थ भारत अक्षय जी के साथ मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे इसे, क्योंकि अक्षय जी इस बात के लिए बहुत फेमस इंसान है, बहुत फेमस एक्टर हैं, बहुत इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। वो हेल्थ की तरफ बहुत लोगों को ध्यान देते हैं, वो कई चीज़ों में बहुत लोगों के साथ हमारे देश के भले के लिए जुड़े हुए हैं। So I would like to pay big thanks to Akshay again, and thank you very much to all of you for joining us today evening. Thank you. Thank you, Giri sir. Few months back, I was sitting with Mr. Girish Juneja, and in the office, Mr. Vijay Prakash was there, Nilakshi was there, and there was this deep silence in the room, if you remember, Girish sir, few months back. Because at that time, the concern was, there's a great product in hand. You have a winner at hand. You've made a big breakthrough, and you've developed a product. The question was, how to make the message reach the audience? How do we make people understand what the product actually is? And we wanted somebody very responsible to help us do that. Now, there are many personalities who are loved in this country, but there are not many personalities who are also trusted. So after that discussion, there was a unanimity in the room on one name. And we all believe that one name, not just the nation loves, but the nation also trusts. And that name, undoubtedly, Mr. Akshay Kumar. I'm very glad, sir, you came on board. And I'm very glad that you had trust in us, in the product, and you're taking it forward. Because it is not because you're just a great performer, but you're also a reformer. The kind of work that you're doing, we so admire. You're bringing a change through your work. There are a lot of people who bring change. Some people bring change through politics. Some people bring change through social work, through activation, activism. But Akshay sir, you are bringing change through entertainment. You're making cinema meaningful. So when an Akshay film comes, you know, my 65-year-old mother wants to see, my 18-year-old daughter wants to see. It is the positive impact. It is not just because of your stardom, sir. It is because of the meaningfulness and happiness that you're bringing now to our lives. We thank you for that. And yes, I think that deserves an applause.
And welcome to the family of Bestochem and Big Brother. Welcome to be part of this mission of making the health quotient of India higher and making Indians live longer. It is my privilege, yes, I am not going to take more time, to call upon stage the one and only Mr. Akshay Kumar. ऐसा था कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मुझे कभी भी बचपन से ये रहा है, कभी चोट आती है, कभी स्टंट के वक्त या खेलते वक्त, जब मैं दिल्ली में लाल किले के वहाँ खेलता था, कुछ भी होता तो नानी हमें दूध में हल्दी, मतलब हल्दी में दूध जो भी है, जैसा भी है, वो पिला देती थी। और जब मैं स्वर्ण साथी के बारे में मैंने सुना कि ये प्रोडक्ट जो है हल्दी के बारे में है और इसके अंदर हल्दी की मिलावट है और इसके अंदर बहुत सारे और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। दादा आप इधर आ जाओ। तो मैंने बोला इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने ऐसा नहीं है कि मुझे ओनर ने बताया कि ये प्रोडक्ट है तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना है और ख़त्म। तो और मैं इतने पैसे मांग रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मेरे लिए ये नहीं। मैंने बाकायदा करीबन 5-6 मीटिंग की इनके साथ, इनसे पूछा, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हुए और तब जाके आई वॉज सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट what this is all about. And उसी को लेके हमने एक छोटा सा एड भी बनाया है। मैं चाहूँगा पहले वो आप एड देख लीजिए, उसके बाद हम आप और मैं बातचीत करेंगे। So can we have the ad please? Yeah, sure. So actually we wanted to
सामने, अक्षय जी आपके ठीक सामने यहाँ। अक्षय जी, हम सारी दुनिया जानती है कि इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग मौजूद हैं सभी जानते हैं कि आप जो है तंबाकू, बीड़ी, पान, गुटखा इन सारी चीज़ों से आप काफ़ी दूर हैं। लेकिन हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि कई सारे एक ऐसे एक्टर हैं, इवन कुछ एक ऐसे भी एक्टर हैं जो आपके काफ़ी करीबी दोस्त हैं, वो इन सारी चीज़ों का काफ़ी सेवन करते हैं। तो आप उन्हें कहना चाहेंगे कि आप स्वर्ण साथी यूज़ करें और आप गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब जो सेवन करते हैं आप ये छोड़ दें? अक्षय जी, अगर आपको मेरी आवाज़। सरकार, आप इतने दूर हो, मुझे सुनाई नहीं दिया आप क्या कह रहे हो। आप माइक के पास आ जाइए। हाँ जी, माइक है मेरे पास। अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अक्षय जी, हम सभी जानते हैं कि आप जो है गुटखा, तंबाकू इन सारी चीज़ों से काफ़ी दूर है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक ऐसे एक्टर हैं जो कि इनके काफ़ी इन सारी चीज़ों का काफ़ी सेवन करते हैं। तो आप चाहेंगे, कुछ एक आपके काफ़ी करीबी दोस्त भी हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके जो दोस्त हैं ये स्वर्ण साथी यूज़ करें और आप चाहेंगे कि वो तंबाकू, बीड़ी ये सारी चीज़ें छोड़ दें? हाँ जी, बिल्कुल। कौन नहीं चाहेगा, चाहे वो दोस्त हो, दुश्मन हो, जिसके लिए भी हो, स्वर्ण साथी सबके लिए है। और मैं चाहूँगा कि लोग इसका इस्तेमाल करें। और बुरी चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लाभदायक चीज़ है। एंड ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो शरीर के अंदर होते हैं उससे लड़ती है। और मैं यही चाहूँगा, बल्कि अभी हाल ही में दिवाली आएगी तो कई लोगों को मैं हैम्पर बना के भी भेज दूंगा इसके बारे में। जी जी जी। अच्छा जी, किसी का नाम लेना चाहेंगे आप अपने दोस्तों का कि जो इन सारी चीज़ों को छोड़ दे? क्यों बेटा, ताकि तेरा चैनल चल जाए। हाँ। ओके। हाय अक्षय। ओके अक्षय जी, टॉयलेट एक प्रेम कथा जो है, एक आखिरी सवाल, टॉयलेट एक प्रेम कथा चाइना में भी रिलीज हो रही है, उसका नाम है टॉयलेट हीरो। चाइना में काफ़ी अच्छा बिजनेस होता है, अगर आप कुछ कहना चाहें, कितने एक्साइटेड हैं आप? बेटा, उसके बारे में आप और मैं वार्तालाप बाद में करेंगे। ओके, ठीक है, आओ पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाय अक्षय। जी सर, जी जी। अक्षय, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड में स्टार्स हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, जिसमें कैंसरस प्रोडक्ट्स होते हैं या गुटखा होता है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स काफ़ी बॉलीवुड के स्टार्स एंडोर्स कर रहे हैं बड़ी फीस लेकर। क्या आप चाहेंगे कि आपके जो बॉलीवुड के साथी हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ये सब एडवर्टाइजमेंट देख के, और ख़ासकर जब बड़े स्टार्स करते हैं तब? तो ऐसा है कि जनाब, ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। एंड जो गलत है सो गलत है। और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी चीज़ों को एंडोर्स ना करें, क्योंकि यस, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लोग देखते हैं, उसे फॉलो करते हैं। सो आई होप हम इसे पीपल गेट द मैसेज एंड दे डोंट डू इट। थैंक यू। थैंक यू जी। हाय सर। सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर हल्दी देखा, इसके अंदर हल्दी देखी, और मुझे बचपन से मालूम है, ये जरूर मालूम है कि हल्दी इज हेल्दी। और हमारे हिंदुस्तान में ये जो हल्दी चीज़ है, बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं जो आयुर्वेदा में आती हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती है, और हम उसको हमेशा देखते नहीं हैं, उस पर जोर नहीं करते, अलग रहते समझते हैं। बल्कि मैं कई फॉरेनर्स को जानता हूँ, कई लोगों को बाहर जानता हूँ जो कि हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, उनके घर में बनती हैं, जिंजर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आयुर्वेदा में जो आती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जब देखा कि इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी कई चीज़ें हैं, और मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने ये नहीं है कि इन्होंने कहा मुझे और मैं मान गया, कई चीज़ें मैंने इनसे बहुत देर काफ़ी बातचीत की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं कुछ कह रहा हूँ, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में हमने काफ़ी बातचीत की, काफ़ी सर्टिफिकेट्स देखे, काफ़ी चीज़ें देखी, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जी मैं इस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहता हूँ। अच्छा, इसे स्वर्ण साथी को जो नशा करते हैं उनके अलावा भी लोग उसको ले सकते हैं जिससे फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल ले सकते हैं, जी बिल्कुल ले सकते हैं।
It is for pollution also. Am I right? Yes, you are right. Right. It is a pollution. वैसे मैं पढ़ रहा था कहीं हर दिन कैंसर को लेके तंबाकू को लेके 2500 लोगों की मृत्यु हो जाती है हमारे देश के अंदर और इट्स अ वेरी सैड थिंग बट आई होप इस चीज से सी रिमेंबर वन थिंग ये कोई क्योर नहीं है इट इज नॉट क्योरिंग यू इट इज फाइटिंग इट्स अ प्रिवेंशन दैट इज इट हेलो ये साथी आए थे आपसे नहीं बात कर रहा है मुझे बोल के गए हैं कि अक्षय जी से पूछे जरा क्या इन्होंने टेस्ट किया है स्वर्ण साथी ये आप कहाँ से हैं आप क्यों इनके कान में कह रहे हैं अच्छा बैठ हाँ जी मैंने बिल्कुल टेस्ट किया है बिल्कुल टेस्ट किया है एक बार नहीं बहुत बार टेस्ट किया इसको हेलो जुनेजा जी मेरा प्रश्न यहाँ पर सामने सामने सर एकदम सामने कैमरा के साइड एकदम स्ट्रेट बोलिए 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 सर ये प्रोडक्ट बनाने में आपको कितना वक्त लगा देखिए इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरे को करीबन 3 साल लग गए तो इसकी खासियत तो आपने बता दी है लेकिन ये जो जैसे आपने बताया अक्षय सर ने आपका ये टेस्ट किया है सर ये अक्षय सर ने तो इसमें बहुत कुछ किया था आपको बता देता हूँ अक्षय सर ने के पास जब हम पहली बार गए थे तो उन्होंने हमारा नाम बदलवा दिया हमने इनको प्रोडक्ट पसंद आ गया और जब शाम को इनसे बात हुआ कि नाम बताया इन्होंने कहा नाम भेजिए क्या है तो हमने कहा पीला साथी इसे आई विल नेवर डू दिस प्रोडक्ट हमने 8 घंटे से कम समय में भी अपना नाम बदलकर इनको दे दिया तब उसके बाद अक्षय सर ने इसको जो वो करा कि मैं इसको एंडोर्स करता हूँ इसके लिए मैं काम करूँगा और अक्षय सर ने इसके लिए कई सर्टिफिकेट लिए हर सर्टिफिकेट्स को इनकी जो टीम है उन्होंने चेक करा और ये बात बिल्कुल सही है दिस इज नॉट क्योर दिस इज प्रिवेंशन और प्रिवेंशन क्या है आप सोचिए छाता लेके चलते हैं ना बारिश होने से बचने के लिए तो ऐसे ही जो इल हैबिट्स की जो चीज़ें हैं जो लोग गुटखा खाते हैं सिगरेट पीते हैं और या और नशे की चीज़ें खाते हैं तंबाकू खाते हैं जर्दा खाते हैं ये उसका छाता है इट इज़ अ प्रिवेंशन अम्ब्रेला ऑफ दैट इफ यू विल ईट एवरी डे 1 pouch it is a safeguard we cannot claim anywhere we are not claiming anywhere कि इससे आदमी ठीक हो जाएगा हम ये कह रहे हैं कि सेफ गार्ड है ये आपको बचा लेगा क्योंकि जो लोग गुटखा खाते हैं हमारे एक मोटे दोस्त बैठे हैं यहाँ पर लखनऊ से हैं वो मेरे ख्याल से अरबपति आदमी होंगे बहुत बिजनेस है उनका और जब भी मैं लखनऊ जाता हूँ मेरे को लेने आते हैं मैं देखता हूँ उनकी गाड़ी में एक डिब्बा रखा होता है वो खाते रहते हैं मैं उनसे कहता क्यों छोड़ अभी भी खा रहे थे थोड़ी देर पहले आई मेट हिम तो वो कहते हैं नहीं भैया मैं तो खाऊंगा इसे नहीं छोड़ सकता मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो खाना छोड़ देंगे उनका मुंह गल जाएगा वो फिर भी नहीं छोड़ेंगे तो इट इज ए प्रिवेंशन इट इज नॉट ए क्योर और जिन लोगों को बाय द वे कैंसर हो चुका है और कैंसर होने के बाद वो ठीक हो गया अगर वो इसके 5 से 6 पाउच रोज खा लें तो उनके लिए ये उनको आगे एग्रीवेट नहीं हुआ कैंसर और ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं राइट सर आप जब खाएंगे आदतें छुड़ाने की बात तो ये है कि इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि हो सकता है कि लोग जो पान मसाला खाते हैं वो छोड़ भी दें कि भैया हम यही खाते हैं सर ऐसे कोशिश पूरी की है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और आपके माउथ में थोड़ी देर मुंह में आपके थोड़ी देर रहेगा भी वो जो क्रंचिंग मंचिंग इफेक्ट होता है वो भी हमने दिया है ताकि आपके माउथ में वो थोड़ी देर रहे जैसे जिनको आदत होती है वो कंटिन्यूस खाते हैं तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट अगर छोड़ना चाहें लोग तो बहुत अच्छा इट इज अ मैसेज इट इज अ प्रिवेंशन ऑफ क्योर इसका आदत नहीं होने का आदत नहीं होगा अभी हमने इसके लिए क्या कहा है अक्षय सर ने कहा एक रोज का मीन्स हम ज्यादा बेचना नहीं चाहते हैं वी डोंट वांट कि लोग ज्यादा पैसा खर्च करें गुटखे के 50 पैकेट खा जाते हैं 20 पैकेट खा जाते हैं एक डिब्बा खा जाते हैं हम वो नहीं चाहेंगे हमें ऐसा सेल्स कंपनी का नहीं चाहिए सर लेकिन आपने अभी बताया कि इसका टेस्ट इतना अच्छा बना है कि वो लोग खाना पसंद करेंगे टेस्ट अगर टेस्ट अच्छा नहीं बनाएंगे तो आप खाना भी घर पे नहीं खाते ना घर पे अगर आपकी वाइफ सब्जी ठीक नहीं बनाएगी तो खा लेंगे आप तो भी आप कह देंगे जबकि वो 25 साल से आपके साथ रह रही होगी
तो टेस्ट की बात है पेशेंट के लिए, और जो ऐसे गुटखा खाने वाले लोग हैं उनके लिए तो टेस्ट अच्छा होना ही चाहिए ना। अच्छा, जैसा कि आपने बताया प्रदूषण में, सर ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में अभी भी मिल रहे हैं जो आप इसको क्लेम कर रहे हो। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो दावा करते हैं कि आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आपका गुटखा ठीक हो जाएगा। आप इस पे कितना जोर दोगे? हमारा ये प्रोडक्ट सिर्फ कैंसर से प्रिवेंशन के लिए है, माउथ अल्सर से प्रिवेंशन के लिए। हम जोर नहीं, हम इसको आपको लिख कर देते हैं, जो इसको खाएगा उसको कैंसर होने से बच जाएगा। पर ये नहीं कहते कि इट इज़ क्योर, जिसको कैंसर हो चुका है उसका क्योर हो जाएगा। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप पहले उपाय कर लेते हैं, बारिश में जाने से पहले छाता लगा लेते हैं, तो आप भीगेंगे नहीं। अच्छा, थोड़ा प्रदूषण के बारे में आप बताएंगे थोड़ा। प्रदूषण सर, आप शांत से सुन रहे हो। हमारी कंट्री में पॉल्यूशन की बात जहाँ तक है, आप देख लीजिए, अब तो पॉल्यूशन कुछ समय से हल्का सा कहीं दिल्ली में या बॉम्बे में कुछ कम हुआ है जब से सीएनजी चला है। अदरवाइज अगर इफ यू गो टू एनी इंटीरियर, आज की तारीख में हमारे देश में अरबों खरबों का नुकसान जो है ट्रैफिक सिस्टम की वजह से होता है, बैड ट्रैफिक सिस्टम। और गवर्नमेंट भी क्या करे, जब 125 करोड़ लोग होंगे, सड़कें भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, टूट जाती हैं, बारिश होती है, तो डेफिनेटली ट्रैफिक सिस्टम में जब जाम लगेगा तो धुआं निकलेगा डेफिनेटली, तो उसका भी असर होता है हम लोगों पे। और देखिए, इस देश के बहुत सारे ज़्यादा जनता गरीब है, और हम लोगों ने इसके लिए इसलिए कहा है कि अगर कोई आदमी एक भी खा सकता है तो वो खाए। हमने कहा नहीं कि इसको आप 4 खाइए, 10 खाइए। सिर्फ उन लोगों को हम कहना चाह रहे हैं जिनको ऑलरेडी कैंसर हो चुका है किसी को, और वो ठीक हो चुका है आफ्टर केमोथेरेपी या कुछ है, अगर वो थोड़ा ज़्यादा खा लेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर देम। उनके लिए एग्रीवेट नहीं होगा। एम आई राइट? इट विल प्रिवेंट फ्रॉम द रीअकरेंस। वो दोबारा से कैंसर होने के चांसेस होते हैं, तो वो प्रिवेंशन मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगा, ताकि वो दोबारा से होगा नहीं उस पेशेंट। अभी हमारे आई मेट समबडी, वो गुटखे का व्यापार भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो बोले कि साहब मुझे ये प्रोडक्ट दे दीजिए और मैं बेचूंगा। मुझे ये तो रहेगा कि आज तक मैं जो हूँ गुटखा बेचता हूँ बिकॉज मुझे पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, और चीज़ें बेचता हूँ, सिगरेट बेचता हूँ, गुटखा बेचता हूँ। पर मुझे पहली बार ये लगेगा कि किसी के अच्छी चीज, किसी के अच्छे के लिए कुछ चीज बेच रहा हूँ। सर आपको पान की दुकानों पे भी सर्वे किया, उनसे भी बात करी, 3 व्हीलर वाले पे भी सर्वे किया, उनसे भी बात करी, टैक्सी वाले से भी सर्वे किया, उनसे बात करी। तो इट इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर ए सोशल कॉज। सर आपको लगता नहीं कि आप एक इमोशन पैक बेच रहे हैं? इमोशनल फैक्ट कभी नहीं बेचेंगे। इमोशनल फैक्ट वहां बेचा जाता है जब हम कहें आप इसको 10 रोज खाइए। इमोशनल फैक्ट ये होता है कि हम इसे कहते हैं कि आप गुटखे की तरह कहते हैं, गुटखे वाले पूरा 500 रुपये का डिब्बा खा जाते हैं। हमारे यहाँ पर एक गुवाहाटी के स्टॉकिस्ट हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, वो कहते हैं मैं 500 रुपये का रोज गुटखा खाता हूँ। इमोशनल फैक्ट की बात वहाँ होती, 15 रुपये के लिए कोई इमोशनल फैक्ट नहीं होता है। सर लेकिन ये पीड़ित को अगर आप बोलते हो ये खाने से आप अच्छा हो जाओगे, तो एक इमोशन ही होगा ना सर, इमोशनल। देखिए, खाने से आप क्या बताएंगे कि बुरा हो जाओगे, ये तो बता नहीं सकते। जो चीज़ किताबों में लिखी है और जो चीज़ प्रूवन है उसके लिए अच्छा ही बताएंगे ना। अक्षय सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? किसके बारे में? सर अभी जो इमोशनल पैक के बारे में जो बात हो रही है, आपका क्या कहना है सर? जी मुझे अच्छी लगती है, मैंने बताया। जो लोगों को अच्छी लगे वो खाएं, आपको अच्छी लगे ना खाओ, ठीक है भैया। तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ तो है नहीं, है जिसको अच्छा लगे खा लें। और जहाँ तक कि इमोशनल ऐसा थोड़ी कुछ कर रहे हैं हम। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मुझे अच्छे लगे, मैंने उसके बारे में पता किया, छानबीन की, मुझे अच्छी लगी, मैंने किया। वरना ऐसा तो है नहीं कि मुझे एड्स की कमी है, फिल्मों की कमी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, पैसों की कमी है, भगवान ने सब कुछ दिया। तो मुझे एक बात अच्छी लगी, मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात वो उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, ठीक है जी।
इसलिए आप अक्षय कुमार हो सर। अक्षय जी, फिल्मों की मैं बात करना चाहूँगा। आप और करीना कपूर 9 साल के बाद एक फिल्म करने वाले हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे आप कि कितने एक्साइटेड हैं आप उस फिल्म को लेकर? बेटे, तो आप एक काम करो, आप दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना जहां इसकी बातें होंगी। अभी फिलहाल ये चल रहा है, आप समझदार इंसान लगते हो मुझे, और आप ऐसी बातें कर रहे हो यहाँ के। यहाँ क्या जरूरत है इसकी बातें करने की? यहाँ हम स्वस्थ भारत की बात कर रहे हैं, आप करीना कपूर की बातें कर रहे हैं। Okay, final few questions, please, and some good ones, please. Last 2 questions. Otherwise, Zenobia is going to beat me up. 1 question. अक्षय जी, एक आखिरी सवाल ये कि अगर आप बता सके, हमने सुना है कि हमारी घड़ी में पूछ ले तू अपने दिल की तमन्ना। मेरी घड़ी में 8:36 हो रहे हैं। हमने सुना है ये जो 8:36 हो रहा है मेरी घड़ी में, हमने सुना है ये आपका सोने का टाइम है। 8 बजे के करीब आप सो जाते हैं, तो इस समय आप अब तू बंद करेगा तो मैं जाऊंगा। ओके, थैंक यू। Thank you. I would request Akshay sir to kindly stay on stage. Akshay sir, kindly stay on stage. Mr. Kamath, Mr. Sriraj, you can take your seats. We'll have some very quick pictures with the dealers and distributors. Akshay sir, kindly stay on stage. Nilakshi, kindly stay on stage. Girish sir, kindly stay on stage. On stage, I'd like to call upon Mr. Naveen Vyas, Mr. Sanjay Kumar Ahuja, Mr. Suresh Pugalia, Mr. R.K. Datta, Poonam Taneja and Rashmi Jaina. भाई हो जाएगा ना तो बता देना, ये हो जाएगा तो लेके आओ ना।